Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और हम लोग आज देख रहे हैं तीसरे स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 38 3:14-38। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। कश्यपोवाच अप्रयताद् आत्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकात् उत मन्ये देशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। कश्यपोवाच अप्रयतादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकात् उत मन्ये देशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। The learned Kashyapa said, because of your minds being polluted, because of defilement of particular time, because of your negligence of my directions, and because of your being apathetic to demigods, everything was inauspicious. Purport by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. The conditions for having good progeny in the society are that the husband should be disciplined in religious and regulatory principles, and the wife should be faithful to the husband. In Bhagavad Gita 7.11, it is said that sexual intercourse, according to the religious principle, is the representation of Krishna consciousness. Before engaging in sexual intercourse, both husband and wife must consider their mental condition, the particular time, the husband's direction, the obedience to the demigods. According to Vedic society, there is a suitable auspicious time for sex life, which is called the time for Garbhadhana. Diti neglected all the principles of scriptural injunctions, and therefore, although she was very anxious for auspicious children, she was informed that her children would not be worthy to be the sons of a Brahmana. There is a clear indication herein that the Brahmana's son is not always a Brahmana. Personalities like Ravana and Hiranyakashipu were actually born of Brahmanas, but they were not accepted as Brahmanas because their fathers did not follow the regulatory principles for their birth. Such children are called demons or Rakshasas. There were only 1 or 2 Rakshasas in the previous age due to the negligence of the disciplinary methods. But during the age of Kali, there is no discipline in the sex life. How then can one expect good children? Certainly, unwanted children cannot be a source of happiness in the society, but through the Krishna consciousness movement, they can be raised to the human standard by chanting the holy name of the God. That is the unique contribution of Lord Chaitanya to the human society. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रवजो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विदुः वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 38। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे
अभी तक जो हुआ कि हमने देखा कि दिति माता ने कश्यप जी को फोर्स किया कि स्पीडिंग है, जैसे हमने देखा कि वो इवन लाइक ए शेमलेस, प्रभुपाद जी कहते हैं शेमलेस पब्लिक प्रोस्टिट्यूट, वो उनका कपड़ा भी पकड़ लेती है। तो इसके बाद उन्होंने कार्य किया। उसके बाद हमने देखा कि कश्यप जी फ्रेश हो गए, उन्होंने नहाया, स्नान किया, गायत्री किया, और फिर अब कश्यप मुनि जी देखा हमने कि कैसे दिति जो है वो कल देखा था कि कैसे वो थोड़ा सा रिपेंट कर रही थी। आज के इसमें श्लोक में अब जो है कश्यप मुनि वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कश्यप आज। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर है सबको? एवरीबॉडी कैन हियर मी क्लियरली? जी ओके, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कश्यप मुनि जी क्या कह रहे हैं। कश्यप मुनि जी कहते हैं कि पहले तो मतलब कहते हैं क्योंकि तुम्हारा मन जो है पोल्यूटेड था, तो इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि सेक्स या लस्ट जो है वो हमारे मन को दूषित कर देता है, और उस चेतना में हम लोग कोई भी कार्य सही नहीं कर सकते। हम लोग बीइंग इन अ पोल्यूटेड स्टेट ऑफ माइंड, हम लोग का मन जब दूषित है तो हम लोग वो कार्य, कोई भी कार्य हम लोग, खास करके आध्यात्मिक कार्य हम लोग सही नहीं कर पाएंगे। इवन हम लोग देखते हैं कि अगर माइंड हमारा पोल्यूटेड है, डिस्टर्ब है, तो इवन भौतिक कार्य भी हम लोग सही नहीं कर पाएंगे हम लोग। वो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा माइंड पोल्यूटेड था, जो टाइम है उसका तुमने कोई ध्यान नहीं रखा। ये संध्या का समय था, वो हमने देखा कैसे वो कहते हैं कि ये शिव जी का आने का समय है, इस समय भूत प्रेत के साथ वो अपना घूमते रहते हैं, तो इस समय नहीं करना। तो फिर भी वो नहीं माने, तो बोलते हैं कि माइंड पोल्यूटेड था, टाइम का ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया, नेग्लिजेंस ऑफ माई डायरेक्शन, मैंने कहा तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है 3 चीज, एंड बिकॉज ऑफ योर बीइंग अपैथेटिक टू द गॉड, तुमने जो देवताओं का भी अनादर किया। तो 4 चीजें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। माइंड पोल्यूटेड था, टाइम सही नहीं था, पति के निर्देशों का पालन नहीं किया, और देवताओं का भी उन्हें अनादर किया। तो ये 4 चीजें जो है करने के कारण वो कहते हैं एवरीथिंग विल बी इनऑस्पिशियस, सब कुछ जो है वो अशुभ होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर कार्य में हम लोग को ये चीज देखना चाहिए। हम लोग पूजा के लिए भी बैठते हैं, या जप के लिए बैठते हैं, या आरती के लिए बैठते हैं, तो माइंड शुड बी प्योर। माइंड को बहुत ही शुद्ध रखना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि माइंड में कुछ किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, स्त्री के बारे में सोच रहा है, जॉब के बारे में सोच रहा है, या कुछ और विचार चल रहे हैं, और बस यहाँ से हाथ उसका घूम रहा है 4 2 3 7 4 2 3 7। वैसे नहीं होना चाहिए। माइंड शुड बी प्योर एंड इट शुड बी फोकस्ड। टाइम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रात को 12:30-1 बजे वो आरती घुमाना शुरू कर दे। टाइम शुड बी प्रॉपर फॉर एवरीथिंग। आई एम सेइंग, आरती तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर डायरेक्शंस होना चाहिए, सही प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं अपने मन में आया तो ये कर लूंगा या मैं वो कर लूंगा, नहीं। इट शुड बी अंडर प्रॉपर डायरेक्शंस। एंड जो है वो देवताओं का भी जो है उनका अनादर नहीं होना चाहिए। तो ये जब नहीं होता तो कश्यप मुनि कह रहे हैं कि सब कुछ इनऑस्पिशियस होगा, और ये जो उनका पुत्र प्राप्ति का ये वाला जो उनका अटेम्प्ट था, ये चारों चीज इसमें फेल हो रही थी, और इसके लिए कश्यप मुनि कह रहे हैं कि सब कुछ अशुभ होगा। तो जैसे कल देख रहे थे कि दिति माता जो है वो प्रार्थना कर रही थी कि शिव जी चाहे तो मतलब मेरे गर्भ को नष्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको बचा सकते हैं, और वो बहुत कुछ ऐसे बातें कर रही थी। तो कश्यप मुनि ये कह रहे हैं गर्भ हुआ तो वो अशुभ होगा, जो गर्भ होने वाला है वो पूरा अशुभ होगा। दैट मीन्स क्या है कि ये जो बच्चा है ये जो है ये राक्षस होगा। मतलब जैसे एक ब्राह्मण के कुल में अगर कोई है तो उसको वो उसके गुण भी होने चाहिए उसके। तो अगर ये सारी चीजें का पालन नहीं होता तो क्या होता है, फिर वो उस
कॉन्शियस का या उस चेतना वाला नहीं होता। तो इसके लिए मतलब हर किसी गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि एटलीस्ट जो है जो प्रॉपर चेतना के साथ में ये कार्य करे और अच्छे जीव हैं उनको जो है आह्वान करे, ताकि मतलब अच्छे जो जीव, नहीं तो क्या ऐसे राक्षस। और हमने देखा कि जब ये राक्षस दोनों आए, आगे देखेंगे कि पहले जो था वो दोनों जो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों का जो है क्या बोलते हैं घर में आते हैं। पहले जो था वो हिरण्यकशिपु आता है और उसके बाद हिरण्याक्ष आता है। तो घर में फर्स्ट एंट्री वाज बाय हिरण्यकशिपु एंड देन हिरण्याक्ष। लेकिन जब बाहर आते हैं तो पहले हिरण्याक्ष आता है। एक्चुअली दे वर ट्विंस, साथ में हुआ था, बट वो पहले बार आया, इसके लिए he is considered as elder brother, but first conception was of हिरण्यकशिपु। तो हम देखते हैं कि कैसे दोनों भी जो थे कितने भयंकर राक्षस थे और कितना हाहाकार, मतलब पूरा मतलब खाली अपने लोक में नहीं लेकिन तीनों लोक को उन्होंने परेशान कर दिया। सारे देवी देवता नीचे के, नरक लोग ऊपर के, स्वर्ग लोक ऊपर का, सारा जो देवताओं का लोक है, सत्य लोक तक उन्होंने सबको त्रस्त कर दिया था। एवरीबडी वाज फेड अप, ये क्या है, कौन लोग है ये। तो इफ इट इज नॉट डन इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस तो फिर ऐसे होते हैं संतान और फिर वो परेशानी करेगी। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले के युग में सिर्फ एक या दो राक्षस हुआ करते थे। में भी हम लोग ऐसा सुनते हैं कि कथाओं में कि एक हिरण्यकशिपु था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रावण। लेकिन अभी देखें तो एवरीबडी इज विद दैट मेंटालिटी। एवरीबडी, हम लोग देखते हैं रोज देयर इज सम रोड रेज, कोई किसी को मार रहा है, कुछ क्राइम हो रहा है। इवन बच्चे जो हैं, जैसे मैं उस दिन शेयर कर रहा था कि जस्ट बिकॉज उसकी माँ ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, उसने वो बैट लेके उसके सर पे मारा एंड आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट he was still watching that mobile, वो अपना मोबाइल खेलता रहा। तो we can understand कि कितना मतलब भयंकर है ये चीज। तो we are responsible for that, और हम लोग को इस चीज में बहुत ध्यान देना चाहिए एज ए गृहस्था। जैसे हमने पहले भी देखा, प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि ये गृहस्थ का ड्यूटी है कि वो अच्छे ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ को उत्पन्न करे। तो ये गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे शुड प्रोड्यूस सच नाइस सन्यासीज, ब्रह्मचारीज एंड वानप्रस्थास। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे 7वें अध्याय का 11वां श्लोक भी कोट करते हैं, जहाँ पे काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षभ। धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वो काम में है। You can see it can be a pious act अगर वो सही चेतना में किया जाए, नहीं तो फिर वो जो है सिर्फ वर्ण संकर ही उत्पन्न करेगा जो पुत्र हैं। और आजकल देख रहे हैं देयर इज एटलीस्ट, आज पहले के जमाने में तो भी एटलीस्ट ये जो कार्य है सेक्स इट वाज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फिर धीरे धीरे हुआ ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हस्बैंड का किसी और से रिलेशन है, वाइफ का किसी और से संबंध है। और आजकल तो ऐसा हो गया लिव इन रिलेशनशिप बिफोर मैरिज सब कुछ हो जाता है, और फिर उनको मतलब 5 साल 6 साल 7 साल फिर उनको नहीं लगता, अरे नहीं यार तेरे से नहीं जमेगा एंड देन दे सेड ओके चलो ठीक है हम लोग, चलो तू तेरा रास्ता देख मैं मेरा रास्ता देख। सो इट्स सो हॉरिबल। तो ये कितना जो है ये घृणित कार्य जो है ये मतलब उस कलयुग की वजह से, कलयुग के प्रभाव में ये सब कार्य हो रहा है, और ये और बढ़ता जाएगा। और इसके लिए कलयुग में इतना क्लेश है, सभी लोग त्रस्त हैं। क्यों? वो बोलता है अरे यार मेरा बाजू वाले ने ये कर दिया, मेरे सोसाइटी का इसने ये कर दिया, मैं रास्ते पे जा रहा तो इसने ये बोल दिया। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज इन दैट असुरा मेंटालिटी एंड एवरीबडी वांट्स टू जस्ट फाइट। हर कोई जो है सिर्फ लड़ने के लिए जो है तैयार है वो, एंड इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन स्पेशली इन कलयुग। और ये तो अभी स्टिल 5000 साल हुए हैं, 5500 साल पूरे हैं,
अभी तो और इसको मतलब भयंकर रूप लेना है। अभी तो बच्चा रेंग रहा है, वो जब पाँव पे खड़ा होगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। सो बिफोर दैट वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करके हमको यहाँ से निकलना है। हम लोग को वेट नहीं करना है हम लोगों को कि कल की भगवान आएंगे, उनके हाथों से मैं अपना जो उद्धार होगा मेरा और मैं फिर जाऊंगा। नहीं, डोंट वेट फॉर दैट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हॉरिबल सिचुएशन। तो जैसे कल भागवतम में भी है, मंद सुमंद मति हो। सभी जो है हम लोग देखते हैं जनरली भी लोग कितने मंद होते जा रहे हैं, इंटेलिजेंस एकदम डल होते जा रहे हैं। मतलब पीपल अर्लियर यूज्ड टू बी सो इंटेलिजेंट, बट अभी जो है पीपल आर जस्ट गेटिंग डल। उनको मतलब कुछ आई डोंट नो, मतलब समझ में नहीं आता या क्या है। मतलब दैट इज इफेक्ट ऑफ कलयुग, दैट्स नथिंग एल्स। तो वी शुड ट्राई टू सी दैट हम उसमें से एक कैरेक्टर नहीं बने। आई हैव टू बी अ डिवोटी। तो जैसे शास्त्र कहते हैं, जे कृष्ण भजे भजे सही बड़ो चतुर, जे कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। तो कृष्ण डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमको सेवा भी करना है, तो एक डल पर्सन ही कैनॉट सर्व। वो अपना गुरु का सेवा भी नहीं कर पाएगा, ना भगवान की सेवा कर पाएगा, ना वैष्णव की। जैसे वो मैं हमेशा राधा गोविंद महाराज जी का कोट करता हूँ चढ़ाने की। एक भक्त को बुलाया कि अरे भाई ये इधर आओ, ये लेके आओ सामान। वो गया सुबह से तो आया ही नहीं वापस। सो हाउ कैन वी सर्व? अपने गुरु को अगर सेवा नहीं कर सकते हैं हम लोग, हाँ तो हम लोग क्या फिर हम लोग का मतलब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम लोग को मतलब कैसे हम लोग गोलोक जाएंगे? हम लोग को सेवा करने का इच्छा भी नहीं है पहला तो। कभी मौका मिलता है तो अरे यार ठीक है चलो, जबरदस्ती करना है, ठीक है ओके चलो ये लो, हो गया मेरा काम। नो, हम लोगों को 24 घंटा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मैं सर्व करूं, कैसे मैं सर्व करूं, कैसे मैं सर्व, तभी हम लोग गोलोक जा पाएंगे। इफ नॉट, हम लोग इसी तरह जो है फंसे रहेंगे। कोई असुर आके हमको परेशान करेगा, या तो हम लोग फिर उस तरह के असुर बन जाएंगे धीरे 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 धीरे। बिकॉज वी आर इन दैट सोसाइटी, और उसमें रहने के बाद हम लोग भी उसी तरह का वातावरण में रह रह के विल फॉल डाउन। हमारा भी पतन होगा और वी विल आल्सो बिकम वन ऑफ दैम। और फिर एक ही काम होगा, फिर जब भगवान जब कल की आएंगे, जब वो उद्धार करेंगे, तभी हमारा जो है कुछ हो सकता है। सो वी डोंट नीड टू वेट फॉर दैट। हम लोगों को प्रयास करना है, बहुत मुश्किल काम है। कोई अगर थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, तो उसको सहन करना, जस्ट टू कंट्रोल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, और वो ह्यूमिलिटी अच्छा भजन करने से आएगी हमारे। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अवंतिका ब्राह्मण का उदाहरण, की कैसे वो इतना घमंडी था, लेकिन वो ऐसा बन गया कि वो जब प्रसाद लेने कहीं से मांग के लाता था, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था, जब वो मांग के खाने बैठा तो लोग आके उसके प्लेट में मूत्र विसर्जन कर देते, कुछ नहीं बोलता था वो। तो जस्ट इमेजिन उसका शिफ्ट ऑफ माइंड, एक टाइम वो कहाँ इतना घमंडी था एंड सडनली। सो हम लोगों को खुद को चेंज करने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो माया देवी हमको चेंज कराएगी फिर। सो डोंट गिव दैट ना, उसके कोर्ट में मत रखो बॉल। हम लोगों को अपने हाथ में, नहीं, आई हैव टू चेंज, मुझे सुधरना है, मैं चेंज करना है। अगर वो आएगी अपने टाइम कराने के लिए, तो इट विल बी वेरी हॉरिबल फॉर अस। सो इंस्टेड ऑफ दैट, हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, वैष्णव से प्रार्थना करें, और हम लोग अपने आप को चेंज करते रहें और हम्बल बनते रहें और अच्छा सा भजन करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक चीज तात्पर्य में कहते हैं कि इट इज क्लियर इंडिकेशन हियर इन दैट द ब्राह्मण सन इज नॉट ऑलवेज ब्राह्मण। इससे ये भी समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे आजकल सभी लोग बोलते हैं अरे मैं तो ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण हूँ, बट डू यू हैव दैट क्वालिटी? तो वो बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं, जज का बेटा जज नहीं हो सकता। हाँ, उसको वो एनवायरमेंट मिला है तो ही कैन इजीली टेक अप दैट वो कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अपना मेहनत करना। जस्ट ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, उसको वो गुण खुद को भी डेवलप करने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं कि रावण हिरण्यकशिपु के जो पिता थे, जैसे हम देखते हैं
रावण के पिता वैश्रव ऋषि थे, ही वाज सच ए ग्रेट ऋषि। फिर हिरण्यकशिप, वो कश्यप मुनि, एंड दे वर, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण है हम लोग देखते हैं, दे वर सो ग्रेट फादर्स, मतलब इतने महान पर्सनालिटी के गर्भ से ये ऐसे पुत्र हुए राक्षस। और वहीं पे हम देखते हैं कि अगर अच्छा संग मिले, साधु का संग मिले, तो ये राक्षस के गर्भ से भी भक्त का, उत्तम कोटि के भक्त का जन्म हो सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज। इट ऑल डिपेंड्स। तो इसका बहुत ही हम लोग को ये करना चाहिए। और फिर एक चीज और कहते हैं प्रभुपाद जी की, ये जो सारा चीज जो नेग्लिजेंस हो रहा है इन सब चीजों का, इसके वजह से कलयुग में ये सब हो रहा है। और सिर्फ इस्कॉन या कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट जो है ये मौका दे रहा है। चलो ठीक है, ऐसे हैं तो उनको इसमें लाओ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाओ, उनको एटलीस्ट मनुष्य बनाओ। मनुष्य क्या चीज है, नमांसाहार मत करो, ये अवैध संबंध मत रखो, ये सब अवैध, मतलब जुआ नहीं खेलना, तो एटलीस्ट मनुष्य बनो हम लोगों। तो ये इस्कॉन जो है प्रभुपाद जी का जो ये संस्था है, ये लोगों को मौका दे रहा है कि यहाँ पे आए और अच्छे से अपना जीवन का उद्धार करें। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से है। तो वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड चैतन्य, वी शुड बी थैंकफुल टू श्रील प्रभुपाद कि आपकी वजह से हम लोग, मैं खुद, मेरा एग्जांपल बोलता है, मैं मतलब इवन शेयर भी नहीं कर सकता कि मैं कैसा व्यक्ति था। स्टिल अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, लेकिन स्टिल मतलब वो जो शिफ्ट है मेरे जीवन का लास्ट 25-30 years, it's tremendous. तो थैंक्स टू प्रभुपाद, थैंक्स टू वैष्णवास। और ये हम लोगों को करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं जीवन में हम लोग कुछ सोच लेंगे तो हम लोग तुरंत चेंज हो जाएंगे, अरे चुटकी बजा दिया, अरे आज कल से मैं डिवोटी हूं। नहीं, इट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हो सकता है कई जन्म लग जाए, लेकिन वो वॉकिंग हमको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे होता है ना, दिल्ली दूर नहीं, अगर चलना शुरू करें तो दिल्ली दूर नहीं है, 1400 किलोमीटर, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग। हम लोग चले ही नहीं, आ रहे दिल्ली तो बहुत दूर है, हम तो नहीं जा सकते, तो फिर तो हमारा वो स्थिति रहेगा। तो वी नीड टू स्टार्ट, हम लोगों को वो प्रयास जो है बहुत जरूरी है, हम लोग उसको शुरू करें। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एडिशनल स्पीकर से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे आपने अभी कहा कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता है, तो इसमें मुझे ये ऐड करना है कि यहाँ पर जो है कि किस तरह वर्ण मतलब सही समय ना होने से ऐसे पुत्र होते हैं। ये सब अभी सब लोग ये ड्यूटी जो है हम सब सुन रहे हैं, लेकिन जो आने वाला है उसे कोई बता नहीं किसी को पता ही नहीं होता है जब किसी के विवाह होते हैं। अभी इस्कॉन में भी बहुत सारे लोगों को है, इस्कॉन में आते हैं, लेकिन ये सब चीज पता नहीं होती है। तो प्लीज जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो सब अपने बच्चों के साथ ये शेयर करें, शर्माएगा मत। और प्लीज इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जिसके भी शादी में जा रहे हैं ना, तो प्लीज उसे ये दे दो, कुछ गिफ्ट दो या ना दो, इससे अच्छी संतान उत्पन्न होगी। और मैंने बहुत पहले सार्वभौम प्रभु से उनका रामायण में चल रहा था, रामायण का क्लास, तो उसमें सुना था कि वो प्रभु बोल रहे थे हमें डीओटी बच्चों की बहुत जरूरत है, और बोल रहे हैं सब डीओटी लोग एक ही बच्चा पैदा करें, एक या दो। तो ऐसा मत करो, आपको पता है कि किस तरह संतान अच्छी होनी चाहिए, अच्छी संतानें पैदा करो और हमें दो, हम पालेंगे। और जो राक्षस लोग हैं सब समाज वो खत्म हो जाएगा और भक्तों का समाज बढ़ेगा। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, प्लीज ये सब शेयर कीजिए अपने जो भी टीनेजर है उनके साथ, या शादी में जा रहे हैं ना, पहले दूल्हा दुल्हन को यही बताएगा। हरे कृष्णा।
सब लोग सरोदे गिरधारी प्रभु जैसे लकी नहीं हो रहे, उनका विवाह होने वाला है और उसके पहले ये सब आ रहा है, तो वो बहुत लकी है। हरे कृष्णा। या करेक्ट। हरे कृष्णा। ठीक है, हेमांगिनी माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। वंडरफुल क्लास प्रभु जी, एकदम शॉर्ट नोटिस पे आपने बहुत अच्छे से मैसेज जो था उस वो परफेक्ट वर्ड्स का वो आपने अच्छे से दिया प्रभु जी। और कुंजेश्वरी माता जी के भी मन की बात उन्होंने इतने दिल से शेयर करी कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये बात की कि आज के टीनेजर्स तक ये बात पहुंचनी कितनी जरूरी है, क्योंकि हमारे तो दिन अब निकल गए। मतलब देयर इज नो चांस कि अब मतलब अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जिनसे आने वाली है उनको ये बात पता होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम तो आज सुन रहे हैं, पर ये हमें मैसेज पास ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत दिल से अपनी बात रखी। प्रभु जी आपने ये बात भी अच्छे से बताई कि कलयुग का जो है कि जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सेक्स एजुकेशन स्कूल के सिलेबस में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सेक्स एजुकेशन स्कूल के सिलेबस में आया, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है कि बच्चों के ऊपर अलग तरीके से अत्याचार होने लगे और बच्चों को वो गुड टच बैड टच का नॉलेज होना चाहिए। ये इस सेंस से ये सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी इंट्रोड्यूस हो गया। पर ये सेक्स एजुकेशन जब स्कूल में इंट्रोड्यूस होने के बाद में उसके मतलब हर एक चीज के अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट होते हैं, तो बच्चों को ये ज्ञान भी बहुत जल्दी आ गया। पहले ये सब चीज प्राइवेट होती थी, हस्बैंड वाइफ तक ही सीमित होती थी, लेकिन अभी तो ये पूरे मतलब टीनेजर्स में ज्यादा फैल गया है ये बात। तो मतलब ये भी अवेयरनेस एजुकेशन देना बहुत जरूरी है बच्चों को कि ये जो नॉलेज है दैट इज जस्ट फॉर योर सेफ्टी, सेफ गार्ड के लिए, ना कि आप उसका मिसयूज करो। तो इसके लिए आपने जैसे कहा वर्ण संकर की मतलब पैदा होना, या फिर बच्चों के मन के ऊपर ये प्रभाव पहले से ही आ रहा है कि हाँ ये सब चीजें ओके है। मतलब क्योंकि प्रभुपाद जब हमारे श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बनाया था, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर अभी धीरे धीरे अपने इंडियन कल्चर में, भारतवर्ष में, भारत भूमि में इतना प्रचलित हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि लिव एंड व्हाट रिलेशनशिप वो भी अभी आ गया है। तो वेरी कॉमन सब ये चीजें जो तभी वहां पर हम जैसे देखते हैं कि यूएस हमसे 200 साल आगे कहते हैं ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एंड एवरीथिंग दे आर अहेड ऑफ अस। तो वैसे ही ये सब चीजें भी भारतीय कल्चर में भी धीरे धीरे समाहित होने की वजह से प्रभु जी ये मिशन को और तेजी से बढ़ाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये सब शास्त्रों के जो विचार है उसको, ये बहुत जरूरी हो गया अभी। सो दैट इज व्हाट माय दिस थिंग प्रभु जी। और आपने कहा था कि जैसे राक्षस से भी डिवोटी बच्चे पैदा हुए, जैसे आपने कहा कि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, वैसे ही हम देखते हैं कि हिडिंबा घटोत्कच, उनका भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने घटोत्कच को एक जन्म भी दिया और उन्होंने अच्छे से अपना धर्म भी निभाया। तो प्रभु जी दैट इज व्हाट माय टेक अवे फ्रॉम योर क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्ण। या और कोई स्पीकर नहीं है, तो कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आप लेते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाया। एक्चुअली मेरा कुछ भी प्लान नहीं था ऐसा कुछ आज का क्लास के, लेकिन सडनली मैं जब ड्राइव कर रहा था तब प्रभु जी का कॉल आया। एक्चुअली एटलीस्ट अभी कार है तो आई कैन अटेंड, अगर बाइक पे होता तो शायद फोन भी नहीं ले पाता मैं उनका। तो उन्होंने बोला कि प्रभु यहाँ पे सम इमरजेंसी, आई कैन टेक द क्लास। तो आई सेड ओके ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो ड्राइव करते करते तो जैसे बोलते हैं और तो टाइप होता है तो मिस्टेक्स बहुत था ग्रामर का, लेकिन आई होप आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई लेता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं हूँ मैं ले लूँगा। तो भैया इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ऐसा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ यू ऑल नाइस वैष्णव, आप लोग अच्छे भक्तों के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाया मैं। थैंक यू। आई थिंक किसी ने हाथ उठाया था। हैंड ये जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज का क्लास बहुत अच्छा था।
मेरा तो एक एक्चुअली आज के क्लास से रिलेटेड पॉइंट नहीं था, थोड़ा एक रियलाइजेशन था कि जैसे हम ये कहते हैं कि कई बार हम सुनते हैं ना कि वो जैसे कई सारी इच्छाएं अगर आपको आती हैं और जैसे तो मटेरियल भी हो या कुछ भी हो, हम सब को ऐसा सिखाया जाता है ना कि हम वो डोवर्टेल करें टुवर्ड्स द लॉर्ड ताकि वो शुद्ध हो जाए और हमारा भी शुद्धिकरण हो। तो मेरा एक रियलाइजेशन हुआ था प्रभु जी कि जैसे हम देखते हैं मटेरियल लोग या नॉन डिवोटीज या जो भी आउटसाइड के, उनको इतनी डिजायर्स भी, मतलब वो उस उच्च लेवल के डिजायर्स भी नहीं होते। ये मतलब मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ प्रभु जी कि भगवान के हमारे जिंदगी में होने के वजह से हमारे मीन्स जैसे हम 16 राउंड्स करते हैं प्रभु जी, तो मैंने देखा है एक ड्रास्टिक शिफ्ट आता है। और जब हम नहीं कर रहे होते या उतने राउंड्स, तो वो मीन्स अगर हम चैंटिंग करते हैं, फुल राउंड्स कंप्लीट करते हैं, तब हमें इच्छा आती है ना कि अरे ये सेवा मैं इतने अच्छे से करूं, या ये ऐसे नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है ये वही करवाते हैं, वो करवाता है कि भाई नहीं, ये मैंने इस डिवोटी को यहाँ पे ये नहीं, उन्होंने कुछ वीडियो मांगे थे, मेरे घर पे कुछ प्रोग्राम है तो वो अरे मैंने उनको भेजे नहीं। तो मतलब कुछ भी इच्छाएं जो भी है वो हमको, हम जब भगवान को रिमेम्बर करते हैं राउंड्स करके, तो वही हमको इच्छाएं दिलवाता है कि ऐसे अभी तक तुमने मुझे जो है प्रसादम का भोग नहीं लगाया, ये नहीं, मीन्स ऐसा मुझे फील होता है। पता नहीं दूसरों को होता होगा कि नहीं, पर जब हम नहीं कर रहे होते, हम छोड़ देते हैं, तब हमको कुछ ये सब पड़ी ही नहीं होती, हाँ कुछ याद ही नहीं रहता। उनके वजह से ही स्मृति, और भगवान खुद भी तो गीता में कहते ही है ना कि फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी एंड मतलब रिमेम्बरेंस भी मेरे वजह से ही आता है। तो मुझे ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ कि इच्छाएं भगवान के होने के वजह से आती है। जहाँ पे मुझे कुछ ऐसी इच्छा होती है कि ये मतलब कुछ भी, और मैंने किसी मटेरियल इंसान को देखा, वो कहते हैं कि मैं इतने ही पैसे कमा के आ गया, अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने इतने से ही पैसे में काम कर दिया। अगर ज्यादा पैसे लेता ये, तो भगवान आधा खुद रखता और आधा भगवान की सेवा में लगाता। मीन्स मेरा एक रियलाइजेशन, क्या प्रभु जी ऐसा होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी इच्छाएं भी भगवान के रिमेम्बरेंस के और चैंटिंग करने के वजह से ऐसा फील होता है कि उनके वजह से ही आती है प्रभु जी। अदरवाइज तो किसी को हो ही नहीं ना कि मैं इतनी अच्छी सेवा करूं भगवान की, ये सेवा करूं वो सेवा करूं। तो प्रभु जी आप बताएंगे इस पे थोड़ा। करेक्ट करेक्ट। ये जब हम लोग जप करते हैं तो बहुत हमारी चेतना पे इफेक्ट पड़ता है, और फिर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं हम लोग। वो जो तमोगुण है या जो मूड्स ऑफ मेटल नेचर है, वो इतना असर नहीं करेंगे हम पे, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है हमारा ऊपर उठ जाता है। और बहुत जरूरी है। और जस्ट हम लोग को ये समझना चाहिए, हम लोग 16 माला अगर करने से अगर ये है, तो जो लोग 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, उनका क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। तो जितना हो सके उतना ज्यादा हम लोग को जप करना चाहिए, उतना ज्यादा हम लोग को भक्त का संग करना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए हम लोगों को, और जितना हो सके बस ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगे रहे हम लोग। और अभी ये कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास के कारण हम लोग सभी लोग, श्योर आप लोग सभी लोग, हम लोग सभी लोग जो हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो लेट्स डू दैट। हम लोग को ये सोच रहे हैं कि हम लोग जब कार्तिक मंथ में 1 महीने में हम लोग जब ये सब एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं, तो पूरा साल के लिए तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जो शेड्यूल है अभी हम लोग इसको कार्तिक मास के भी बाद भी हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। और मधुसूदन प्रभु जी ने भी एक बार ये कहा था ना हमारे भक्ति शास्त्री के क्लास में कि कई बार लोग सोचते हैं कि मतलब स्पिरिचुअल होना और हम लोग एक अच्छा डिवोटी होना, हम सोचते हैं कि हम चैंटिंग कर लेंगे, 16 माला हमारी हो गई, हमने रीडिंग कर ली और ये बस। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये काफी नहीं है, इसके अलावा भी हमें अपनी चेतना को प्रभु जी उस पर भी काम करने की जरूरत है ना। जैसे कि अभी कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि ये इनफ नहीं है, उसके अलावा भी हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ भी देखना है ना, कि कितने डिवोटी समझे कि मेरी 16 राउंड सुबह सुबह हो गई, रीडिंग हो गई, मेरी साधना हो गई। अलावा भी इसके हमें प्रयास करना चाहिए ना प्रभु जी, के हम किसी को, जैसे कि कुछ बच्चे हैं वो भोजन नहीं खा सकते, वो प्रसादम वो मंदिर नहीं जाते, तो जैसे मैं लाती हूँ तो वो कहते हैं हमारे लिए भी प्रसादम लेकर आओ। तो क्या हम उसको आगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, अपने ही लेवल पे रहेंगे, नहीं नहीं मेरा तो हो गया तो अभी मैं दूसरों का क्यों सोचूं। मतलब जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो इनफ नहीं है कॉन्शियसनेस को साफ करने के लिए प्रभु जी। तो देखो, किसी को खाना खिलाना तो ठीक है, तो इट्स एन पायस एक्टिविटी, लेकिन प्रसाद किसी को देना
इट्स अ डिफरेंट एक्ट। तो जितना हो सके हम लोगों को प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लोग करते हैं, अरे भूखा है इसको खाना खिलाओ, इसके पास कंबल नहीं है कंबल दो, दैट इज ऑल्सो गुड। ये भी बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि लोगों को जरूरत है समाज में, एंड यू आर हेल्पिंग, सो यू ऑल्सो गेट सम पाइस बेनिफिट। लेकिन हम लोग को सिर्फ उसके बॉडी का जो है लेवल तक नहीं देखना चाहिए, उसको चेतना में कैसे। इसके लिए प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ पे शुरू किया, लेकिन उसके साथ ये था कि सबको किसी न किसी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना है। उनको भगवद गीता क्लास में बुलाओ, उनको प्रसादम खिलाओ, क्वेश्चन आंसर करो, उनसे पूछो। जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ आते हैं, प्रसाद खाते हैं, चले जाते हैं। इवन दैट इज ओके, प्रसाद भी खाएंगे। मैं जानता हूँ कि कई मतलब मैं अपने जो सीनियर थे कुछ, वो लोग यही कहते थे कि हम लोग जुड़े ही सिर्फ प्रसाद की वजह। वो लोग जाते थे, सिर्फ प्रसाद खाते थे, वापिस आ जाते थे, बट दैट मेड अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर हार्ट। इवन दैट इज ओके, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि और ठीक है, चलो ठीक है, क्लास में आओ, थोड़ा भागवतम सुनो, भगवद गीता सुनो, थोड़ा चर्चा करो, भक्तों का संग करो, मंदिर में जाओ, मंदिर में कुछ सेवा करो वहां पे। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये सब चीजें करनी चाहिए हम लोगों को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना 16 माला किया, 2 श्लोक भागवतम के पढ़ ले, बस अब मेरा हो गया, अब 22 घंटा 20 घंटा जो भी है मेरे पास, मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा ना सततम कीर्तयम तो भगवान कहते हैं कि 24 आवर्स शुड। तो हम लोग ये देखना चाहिए 24 घंटे में से कितना टाइम हम लोग जो है इसमें डाल रहे हैं। दैट विल मेक एन इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी करना बहुत इजी ये- होता था, लेकिन प्रभु जी मेंटेन करना बहुत वो हो जाता है कि ऐसे जब मैं सॉरी छोटा सा ही थोड़ा एक बता के प्रभु जी, ये जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं और प्रभु जी जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो बोला था उन्होंने, हम भेजा तो 3 दिन किया आरती, और चौथे दिन या 3 दिन तीसरे दिन उन्होंने बोला कि आज तो आरती नहीं है। तो वो लोग, उनको भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम करेंगे भगवान की आरती। ये मेंटेन करना फिर वो होता है कि बच्चे सोचते हैं अरे आज नहीं है क्या आरती, और प्रसादम से उनको अट्रैक्ट करते हैं हम कि भाई प्रसादम मिलेगा। मैंने पहले दिन बोला पानी पूरी मिलेगी, आओगे तो करेंगे। तो ये बड़ी करवाना, पहले शुरू करना है बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना फिर, क्योंकि बच्चे हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज भी भगवान की आरती होगी, और जब मना कर दो कि आज ऑफिस जाना है या कुछ और प्रोग्राम पे जाना है, तो वो बेचारे मतलब उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं जहाँ प्रोग्राम में जा रहे हो ना कीर्तन के, तो हमारे लिए प्रसाद भी लेकर आना। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उसको मेंटेन करना है प्रभु जी। नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? वी शुड सी दैट कि हम लोग जो है वी मतलब एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को वो अगर समझो, जैसे मैं सिंपल चीज लेता हूँ, सुबह जल्दी उठने का, तो जो 7 बजे उठ रहा है वो डायरेक्ट सुबह 3 बजे का वो अलार्म लगा के वो सोचे कि मैं चालू करूँ, तो नहीं होगा। हाँ, एक दिन कर सकता है, वो वृंदावन गया है तो सुबह 3 बजे उठ के नहा के मंदिर चला गया, फिर आ गया। लेकिन अगर वो मेंटेन करना है तो इट शुड बी ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि वो सडनली। तो हर चीज जो है अगर हम लोग को मेंटेन करनी है तो ग्रेजुअल होनी चाहिए। अभी जैसे तुम्हारा जो तुम बोल रही हो बच्चों को, तो हाँ मतलब उनको बुलाया थोड़ा दिन, फिर वो रखा, और इंस्टेड ऑफ पानी पूरी है या दूसरा कुछ सिंपल प्रसादम, ऐसा जैसे खिचड़ी है या समथिंग व्हाट चिल्ड्रन लाइक्स, यू कैन फीड दैट। ऐसा कर सकते हैं ग्रेजुअल। अब क्या है, ऊपर से एकदम स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा तो फिर उनका इंटरेस्ट चला जाएगा। वैसे नहीं होना चाहिए, इट शुड ग्रेजुअली, इट शुड धीरे 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 इंक्रीज। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी वही था, मतलब आपने जैसे बताया ये सिंपल प्रसाद हम रख सकते हैं। मतलब उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि प्रसादम से ज्यादा उन्होंने आरती के बारे में पूछा, मुझे वो अच्छा लगा कि भाई आरती करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब भगवान का कुछ भी सेवा करेंगे तो ये मिलेगा। बहुत ही एक मतलब मीन्स बियॉन्ड, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। वो आरती के लिए आ गए, मतलब एक बार वो लोग आ गए अपने आप, और
मैं रेडी नहीं थी तभी, तो मुझे लगा कि भगवान अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो भगवान मौके देते हैं हमको। तो तब मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी, अरे अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ, बच्चे रेडी होके टाइम पे आ गए और हम लोग अभी तक लैग कर रहे हैं। तो वो एक प्रोत्साहन मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं मुझे भी टाइम पे आना चाहिए और रेडी हो जाना चाहिए, बच्चे रेडी हो गए। मीन्स फिर उसको मेंटेन करना कि अरे किसी दिन नहीं करेंगे तो वो बोलते हैं कि आज नहीं है ना आरती, आज नहीं है ना, तो हमको खुद को वो लगता है कि यार भगवान चाहते हैं कि हम ये करें और हम ऐसे वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो मेंटेन करना बहुत वो हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट वही, लेकिन मैं वजह से वही कह रहा हूँ, मेंटेन करने के लिए वी शुड टेक सिंपल स्टेप्स ताकि वो बर्डन ना लगे हम लोगों को, जो हम लोग कर पाए ऐसे चीजें हम लोग को लेनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।